In this video, we are going to learn about the poem An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. He is a British poet, novelist, and an essayist. And he has written very thoughtfully about the 18th century situation in his writings. In this poem, though quite small, but he has given a vivid picture of the type of education was given during that time in Britain. And he has described the things very clearly. In the first stanza, the poet tells how were the children there. Very ill-clad, ill-fed, and they felt insecure. They were not confident enough to talk or to read. In the second stanza, the poet describes the classroom, that the walls were very dull, the paint was decaying, and some of the portraits were hung there which were meaningless, like the portrait of Shakespeare, the portrait of donors, many pictures of valleys and buildings with domes, and some other picture, and one map, world map was there. So all these pictures, these things which the children have never seen. So obviously that was of no use for the children who were studying there. And then in the next two stanzas, the poet expresses a strong reaction against the system and the way the teaching was done, and the way and about the matter, about the things which were taught to them. He expresses that there is no use of petty donations, that will not help them a lot, and this world map will never be able to explain the real world to these children. These children should be allowed to go in the real world, in the open world, where they could feel the wind, they could see the sea, they could see the open sky, and they must be taught in such a manner where they must become confident to read the things themselves. That means the poet wants to say that these children should be treated as respectable human beings. So this is the summary of the poem and the central idea also. So now I'm going to explain you the poem stanza wise. Far, far from gusty waves, these children's faces. दो बार far far यूज करेगा. far मतलब दूर, दूर दूर मतलब बहुत दूर, जिसको हम हिंदी में कहें कोसों दूर. मतलब क्या है ये कोसों दूर? किससे है? इन बच्चों के चेहरे, किन बच्चों के जो वहां पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे कोसों दूर है. किस चीज से? गस्टी वेव से. गस्ट मतलब होता है हवा का झोंका, और मतलब हवा जो उसकी वेव्स, उसकी लहरें जो आए, उसको उन लोगों ने कभी महसूस ही नहीं करा है. तो उससे वो कोसों दूर है, यानी कि रियल वर्ल्ड से कोसों दूर है. लाइक रूटलेस वीड्स. किसके जैसे? जैसे कि छोटे मोटे पौधे जो होते हैं. वीड मतलब छोटे मोटे पौधे. आजकल तो वीड्स का मतलब भी दूसरा निकाला जाता है. वो लोग आजकल कुछ और पौधों के लिए भी कहने लगे हैं, लेकिन वीड का बेसिक मीनिंग होता है जो खरपतवार होता है, जो जंगली पौधे होते हैं और जिनकी रूट्स बहुत कम होती है. वो उतनी ही रूट से अपना पानी लेते हैं, खाना लेते हैं, और अगर उन्हें उखाड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल ही मुरझाए हुए हो जाएंगे, सेकेंड्स में भी वो मुरझा जाएंगे. वैसे ही इन बच्चों के चेहरे हो रहे हैं रूटलेस वीड्स के जैसे. दैट मीन्स सिमिली इज यूज्ड हियर. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. बाल कैसे हैं? टॉर्न है, एकदम सूखे रूखे बाल हैं. राउंड देयर पैलर मतलब उनके चेहरे के चारों तरफ हैं. तो
तो एकदम अनकेप्ट सॉर्ट ऑफ हेयर। द टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है जिसका सर एकदम नीचे झुका जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे खाना नहीं मिला है, सर इतना ज़्यादा उसका झुका जा रहा है। लंबी लड़की है, उसको पूरा पोषण नहीं मिला है। शी इज इल फिट। द पेपर सीविंग बॉय, एकदम पेपर के समान दुबला बच्चा है, यानी कि एक मेटाफर यहाँ यूज करा गया कि एकदम पेपर ही हो गया है जैसे वो बच्चा। पेपर सीविंग बॉय विथ रैट साइज, कैसी आंखें? चूहे की जैसी आंखें हैं। तो वो जो है एकदम मतलब आंखें एकदम उसकी निकली आ रही हैं, एकदम पूरा शरीर धस गया है उसका। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, स्टंटेड मतलब होता है जिसकी ग्रोथ ना हुई हो। अनलकी एयर, HEIR, एयर मीन्स होता है, इसको हेयर नहीं पढ़ा जाएगा, एयर पढ़ा जाएगा, और इसका मीनिंग होता है वारिस। यानी अब दूसरे बच्चे का बता रहे हैं कि वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, वो बहुत अभागा है, अनलकी है। क्यों? क्योंकि उसके पिता को बीमारी थी, गांठ की, उसकी गांठ वाली बीमारी थी, और उसको भी वही बीमारी हो गई है। वो उसने मतलब विरासत में उसको वही बीमारी मिल गई है। रिसाइटिंग अ फादर्स नॉल डिजीज, अपने पिता की इस गांठ की बीमारी को वो एकदम जैसे रिसाइट कर रहा है, मतलब जैसे बता रहा है, लिटरली बता रहा है कि वो उसकी इस तरह की बीमारी है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क से ही अपना लेसन इस तरह बता रहा है क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, एक अननोटेड सा, मतलब जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इस तरह का एक बच्चा है जो एकदम पीछे बैठा हुआ है, बड़ा प्यारा सा है और यंग है, छोटा है। His eyes live in a dream, उसकी आंखें एक सपने में हैं, सपना देख रही हैं। क्या सपना है? Of squirrels game in tree room other than this, मतलब कि जहाँ पर कि पेड़ों पर गिलहरी चल रही हो, और जहाँ पर कि ट्री रूम मतलब कि पेड़ में कोई एक खोखली जगह हो जाए, जिसको कोटर हिंदी में कहते हैं, कोटर। तो वहाँ जाकर गिलहरी बैठे और वहाँ अपना घर बना रही है। तो इस तरह का वो एक सपना अपने आंखों में लिए हुए है, मतलब कि एक सपना ही है, वो लोग रियल लाइफ से बहुत दूर हैं। Now, the second stanza, on sour cream walls, SOUR, sour means होता है बेसिकली तो खट्टा होता है इसका मीनिंग, लेकिन यहाँ पे क्रीम वॉल्स हैं, एकदम बदरंगी सी दीवारें हो रही, क्रीम कलर है मगर एकदम जैसे लगता उतरा हुआ है, तो उसको सार क्रीम वॉल्स कहा है। क्या है वहाँ पर? डोनेशंस, मतलब कि जो डोनेशंस के जो डोनर्स हैं उनकी तस्वीरें हैं। शेक्सपियर का हेड है, मतलब शेक्सपियर की तस्वीर वहाँ टंगी हुई है। क्लाउडलेस डॉन, जो कि एकदम वहाँ यूजलेस सी लग रही है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, जो बड़े डोम्स हैं, बिल्डिंग्स के डोम्स हैं, मतलब गुंबद हैं, उनकी तस्वीरें हैं। जैसे लग रहा है पूरे शहर में सबसे ज़्यादा जो ऊंची चीज़ें हैं वो वहाँ पे दिखाई गई हैं। बेल्ट, फ्लारी, टायरलीज वैली, यानी कि वहाँ पे टायरलीज जो है वो एक वैली है, घाटी है, और उस घाटी में बहुत सारे फूल लगते हैं। ये एल्पाइन माउंटेन में वहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया है, वहाँ एल्पाइन माउंटेन है, वहाँ की घाटी जो सबसे सुंदर लगती है उसके फूल लगे हुए हैं। अब ऐसी चीज़ों को दिखाना जो इन बच्चों ने कभी सोची ही नहीं, देखी ही नहीं, जिनके बारे में जाना नहीं, तो ऐसी इन चीज़ों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज़ें वहाँ पर लगी हुई हैं, इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, पूरा विश्व का नक्शा लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस दुनिया को मतलब कि जो उस क्लास की दुनिया है उसको वो पूरा दुनिया अवॉर्ड कर रहा है, दे रहा है कि ये दुनिया इस तरह से तुम देख सकते हो। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और फिर भी, येट मतलब फिर भी, इन बच्चों के लिए जो ये बच्चे हैं, ये दीज विंडोज, उस कमरे में जो खिड़कियां लगी हुई हैं वही उनकी दुनिया है।
ये जो मैप यहाँ लगा हुआ है ये उनकी दुनिया नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस खिड़की के द्वारा ही वो थोड़ा सा बाहर देख सकते हैं। Where all their futures painted with a fog। और उस खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है? केवल फॉग दिख रहा है, केवल कोहरा दिख रहा है। तो कोहरा क्या है? ये ही कोहरा उनके जीवन में एकदम छाया हुआ है, उन बच्चों के जीवन में छाया हुआ है, पूरा उसने पेंट कर दिया है इनके फ्यूचर को। A narrow street sealed in with a lead sky। एकदम पतली सकरी सी, नैरो स्ट्रीट मतलब सकरी सी, वहाँ एक स्ट्रीट है, एक गलियारा है जो कि पूरा पेंटेड है, एकदम सील कर दिया है। मतलब कि जैसे उसको बंद हो गया है। किस चीज़ से बंद हो गया है? लेड स्काई। मतलब स्काई का कलर कैसा लग रहा है? लेड के जैसे। लेड मतलब सीसा, जो होता है मेटल होता है सीसा, तो वो ग्रे कलर का होता है, एकदम ग्रे कलर के जैसा। वो पूरी लाइन ऐसी हो रही है, पूरी स्ट्रीट ऐसी हो रही है, और मतलब अंधकार ही अंधकार सब तरफ है। खिड़की से बाहर देखेंगे उन्हें तो भी अंधकार दिखेगा, सड़क पर आएंगे तो भी उन्हें अंधकार दिखेगा, क्योंकि बहुत सकरी गली है वो। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब ये बहुत दूर है, कोसों दूर है। किस चीज़ से? नदियों से, केप्स से। केप मतलब ऐसे किनारों से जहाँ पर कि समुद्र का किनारा या इस तरह की जगह दिख जाएं जहाँ पर कि थोड़ा पानी हो, ज़मीन हो, इस तरह की चीज़ें दिखें। और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कुछ इस तरह के जो चमकती हुई चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं, वो चमकती हुई चीज़ें उनको सचमुच में दिखाई पड़ें। तो इस तरह से यही मीनिंग है कि जो पोएट यहाँ पर बताना चाह रहा है, थोड़ा सा मतलब उस पर कमेंट करते हुए ही पोएट ने इस भाव को एक्सप्रेस करा है। Now the third stanza. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example। शेक्सपियर कैसा है? मतलब विकेट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि दुष्ट है। विकेट का मतलब नो यूज ऑफ शेक्सपियर्स पिक्चर देयर। और मैप जो है वो एक बिल्कुल बेकार का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं है, तो इनके लिए ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, कोई सेंस नहीं है इस मैप को यहाँ लगाने का। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और उसमें क्या क्या बना हुआ है? उसमें शिप्स बनी हुई हैं, उसमें सन बना हुआ है, और उसमें ऐसा शो करा जा रहा है कि बड़ा उसमें दिखावा करा जा रहा है कि बड़ा प्रेम से ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, टेम्प्ट कर रहा है, उनको आकर्षित कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, कोई आकर्षण उसमें नहीं है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन द क्रैम्प्ड होल्स। क्यों? क्योंकि, फॉर मतलब क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि उनका जीवन जो है वो बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल दबे पांव, स्लाइली एकदम। वो मैप जो है क्यों बैड एग्जाम्पल है? क्योंकि उनका जीवन जो है गुप्त रूप से या स्लाइली मतलब दबे पांव, समझ लीजिए कि वो एक क्रैम्प्ड होल्स में परिवर्तित। क्रैम्प्ड होल्स मतलब कि झुग्गी झोपड़ियाँ में जहाँ पे एकदम अंधेरा ही है, उस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस मैप का उनके लिए क्या यूज? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब कहाँ से कहाँ उनका जीवन जा रहा है? फॉग में हल्का धुंधला सा दिख रहा है, और फिर एकदम जब अपनी झोपड़ियों में जाएंगे तो एकदम एंडलेस नाइट है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये जीवन उनका अपना है, और मैप में दूसरा जीवन दिखाया जा रहा है। सो देयर इज नो कंपैरिजन। ऑन दिस स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स। और वो क्या करे हुए हैं बच्चे? स्लैग हीप मीन्स होता है, स्लैग मतलब कूड़ा होता है, हीप मतलब होता है ढेर। अब ये क्या है? एकदम जैसे कूड़े का ढेर ही हो गया है, कि जो एकदम मतलब जो मीनिंगलेस नहीं है, जो आपके काम का नहीं है, वो एकदम कूड़ा ही हुआ। अब ये बच्चों का जीवन कैसा हो गया? एकदम कूड़े का ढेर टाइप का हो गया है। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन, एकदम दुबले पतले हैं, और जैसे लगता है कि अपने ऊपर खाल ओढ़े हुए, वेयर करी हुई है। पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और वो उनके खाल के उससे अंदर से जैसे लग रहा है कि बोन्स निकली चली आ रही है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। और उस पर वो क्या पहने हुए हैं कुछ बच्चे?
जो चश्मा पहने हैं उसका फ्रेम स्टील का बना हुआ है, और उनका जो शीशा लगा है उसमें वो भी टूटा हुआ है, जिसको किसी तरह से जोड़ा गया है। मेंड मतलब होता है कि उसको जोड़ करके बनाया गया है, उसकी ठीक करा गया है उसे। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लग रहा है कि बॉटल के छोटे छोटे टुकड़ों को स्टोन पे जमा दिया गया। बॉटल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों को स्टोन पे जमा दिया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, पूरा उनका टाइम, पूरा उनका जीवन कहाँ जा रहा है? फॉगी स्लम में, एकदम उस अंधकारमय कोहरे भरे स्लम में जा रहा है। So blot their maps with slums as big as doom. तो ये क्या कर रहा है कि उनके जो तो सो ब्लॉट देयर मैप्स, मतलब ब्लॉट मतलब होता है एक धब्बा, एक निशान। तो उनका जो जो स्लम्स हैं वो उनके जीवन पर एक धब्बा है, और इतना ऐसा धब्बा है जो कि इतना बड़ा है कि जैसे नरक, मतलब कि वो उस जीवन से, उस धब्बे वाले जीवन से, नरक के समान जीवन से बाहर नहीं आ सकते हैं। नाउ द फोर्थ स्टेंजा, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, यानी ये सारे लोग जो कि स्कूल से संबंधित हैं, कि गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर जो वहाँ आते हैं, जो डोनर्स हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स। मतलब ये जो मैप है जो यहाँ पर दिखाया गया, जो दीवारों पे वहाँ लगा हुआ है, इनकी सचमुच की खिड़की बन जाए, देयर विंडो, और जो उनकी अपनी खिड़की, जो उनके अपने क्लासरूम में जो खिड़की लगी हुई है, दैट शट अपॉन देयर लाइफ, जो कि उनके जीवन पर को इस तरह से बंद करती है, शट करती है, कि जैसे कि कैटाकोम्स, मतलब कि जैसे तहखानों में नीचे अंडरग्राउंड जो कब्रिस्तान बनाए गए हों, इस तरह का उनका जीवन है। तो जबकि जो मैप दिखाया जा रहा है वो बड़ा जीवंत है, तो उनका रियल वर्ल्ड से कुछ नाता होना चाहिए, ना कि इस तरह के कैटाकोम्ब से, यानी कि जो उनका एकदम अंडरग्राउंड, उनको एकदम कब्रिस्तान के समान उनका जीवन हो गया है, वो नहीं होना चाहिए। लाइक कैटाकोम्ब्स मतलब यहाँ पर सिमिली का यूज़ करा गया है। ब्रेक, ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, सब तोड़ दो, मतलब कि वो इन्वोक कर रहा है पोएट कि ये सारी दीवारें तोड़ दो, और जब तक कि ये बच्चे शहर में ना चले जाएं, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, मतलब जब तक ये बच्चे स्वयं जा कर के हरे भरे खेत न देख लें, और एज्योर मतलब होता है कि नीला रंग, तो और जब तक कि ऐसे नीले समुद्र के पास ये ना चले जाएं जो कि रेत पर बह रहा हो, और यानी कि वहाँ वो चल सके। रेत मतलब गोल्डन सैंड जो है, जब पानी जो होता है रेत से कई बार उस पर धोता है रेत को, तो वो एकदम गोल्डन टाइप की हो जाती है। तो उस सैंड को वो धो रहा है, और ये बच्चे खुद जाकर के वो चीज़ें देख पाएँ। And let their tongues run naked into books, the white and green leaves. और उनकी जो टंग है, जो ज़बान है, वो किताबों के पन्नों पे, जो सफ़ेद और हरे पन्ने हैं, उन पे आराम से एकदम स्मूथली चल सकें, आराम से वो पढ़ सकें, ज़्यादा फोर्स करके ना पढ़ाए जाए, मतलब कि इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो आराम से पढ़ सके। लीव्स मतलब यहाँ पर है किताबों के पन्ने, वो अपने आप वो पन्ने पढ़ सकें। ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास उन लोगों का होता है जो रोशनी में, सन का मतलब वैसे सूरज भी होता है, सन का मतलब धूप भी होता है, यहाँ रोशनी से मतलब है। तो यहाँ इतिहास उनका होता है जो रोशनी देखते हैं या रोशनी में रहते हैं या उसकी बात कर सकते हैं। तो इन बच्चों को भी आगे आना चाहिए, लेकर के आना चाहिए, इनको मतलब ह्यूमन बीइंग्स के जैसे ट्रीट करा जाना चाहिए, और इनको रिस्पेक्टफुल जीवन जीने देना चाहिए।